Hello everyone, Amit Arora from EcoVisionaire. I hope you have watched part one of political parties. में हमने दो टॉपिक कवर किए थे political parties के. One we did was the meaning and functions of political parties and also why are political parties necessary. In today's class 2, we will be discussing how many parties should we have, जिसके अंदर हम लोग party systems के बारे में जानेंगे. One party, single party system, bi-party system and multi-party system. India is a multi-party system. तो और साथ में हम लोग करेंगे, we'll talk about the ideology of 7 national parties today. चलिए स्टार्ट करते हैं कि how many parties should we have. So very difficult question, how many parties should we have. तो इसमें हमने क्या करना है कि एक कंट्री में कितनी पार्टीज होनी चाहिए. In democracy, any group of citizens is free to form a political party. In this formal sense, अगर हम बात करें, there are large number of political parties in each country. So more than 750 parties are registered within the election commission. यहाँ पे इंडिया की बात हो रही है. इंडिया में more than 750 political parties are registered in India. इलेक्शन कमीशन के साथ ये रजिस्टर्ड है और अनरजिस्टर्ड पार्टीज भी बहुत सारी हैं. So we have more than 2000 parties in India. And all these parties are serious contenders in the elections. तो इनमें से काफी लोग इलेक्शन में खड़े होते हैं. Usually only a handful of parties are effectively in the race to win elections and form. पर इतनी सारी पार्टीज में से जो कुछ हैंडफुल ऑफ पार्टीज हैं जो एक्चुअल रेस में आती हैं when it comes to elections. So क्वेश्चन अराइज होता है कि भैया एक कंट्री में कितनी पार्टीज होनी चाहिए और how many major or effective parties are good for a democracy. In some countries we have only one party where one party is allowed to control and run the government. This is called one party system. ऐसा चाइना में होता है. So in China we have one party system जहाँ पे एक ही political party को हम लोग recognize करते हैं और उसी में से लोग elections लड़ते हैं, उसी में से खड़े होते हैं बीच में. In class 9th we have already noted that China only the communist party is allowed to rule. Although legally speaking people are free to form political party, does not happen because the electoral system does not permit free competition for powers. Despite the fact कि वो political parties बना चुके हैं पर उनको allow नहीं होता है. We cannot consider one party system as a good option. तो चाइना कोई proper democratic country नहीं कहा जाता. Any democratic system must allow at least 2 parties. Yes, अगर आपको genuine democracy बतानी है तो you have to have at least 2 parties की public के पास choice हो कि वो एक की ideology से सहमत ना होती हो तो वो दूसरे को वोट दे दे. So if I'm not satisfied with the ideology of one party, at least I can vote for the other. And it provides a fair chance for competing parties to come to power. In many countries, yes, there are usually changes between. आपको US जानते हैं आप लोग. US अमेरिका में बहुत ही मेजर जो इकोनॉमी है वर्ल्ड की, वहाँ पे 2 party system है. 2 main parties में it have a serious chance of एक पार्टी जब हारती है तो दूसरे के पास सीरियस चांस है जीतने का. सच अ पार्टी इज कॉल्ड 2 party सिस्टम कहते हैं इसको. सच पार्टी सिस्टम इज नोन एज. तो 2 बड़ी मेजर इकोनॉमीज एंड कंट्रीज जो बहुत पॉपुलर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैं, एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड यूनाइटेड किंगडम, ये बेस्ट एग्जांपल्स हैं 2 party सिस्टम के. डेमोक्रेट्स, रिपब्लिक, तो इस तरह से आप रिपब्लिकन्स, ये दोनों पार्टियां ऐसे अभी इलेक्शन चल रहे हैं यूएस में. तो वी हैव 2 party सिस्टम. एक पार्टी से ट्रंप बिलोंग करता है, दूसरे से बिडेन बिलोंग करता है. सो इफ ट्रंप इज नाउ नॉट लीडिंग और इफ ही इज बिहाइंड बिडेन, तो जो पार्टी रूल कर रही थी वो ट्रंप की थी एंड नाउ वी आर एक्सपेक्टिंग द डेमोक्रेट्स टू विन. सो दस इन इंडिया, पर इंडिया में वी हैव सेवरल पार्टीज. तो आपने देखा पहले चाइना का एग्जाम्पल था 1 party सिस्टम, फिर यूएस का एग्जाम्पल आया विद बाई पार्टी सिस्टम और अब इंडिया का एग्जाम्पल है multi-party system. So where only 2 main parties have serious chance of winning, that was bi-party. So US and UK are the examples. If several parties compete for power and more than 2 parties have a reasonable chance of winning, where more than 2 parties can win, they have a fair chance of winning to power, coming to power either on their own or with the alliances, we call it a multi-party system. तो इंडिया में बहुत ही क्लियर मल्टी पार्टी सिस्टम है. इंडिया में बहुत बार 77 में, देन
89 टू 2014 कोलिशन गवर्नमेंट्स बनी हैं जो मल्टी पार्टी सिस्टम पे बेस्ड है. So thus in India we have multi-party system. In this system the government is formed by various parties coming together in a coalition. When several parties in the multi-party system join hands for the purpose of contesting elections and winning power, it is called an alliance. Yes, आज भी NDA alliance से गवर्नमेंट चल रही है. 2004 to 14 UPA था, उससे पहले यूनाइटेड फ्रंट, नेशनल फ्रंट, लेफ्ट फ्रंट, ये अलायंसेज ने रूल किया इंडिया में. The multi-party system often appears very messy and leads to political instability. At the same time, the system allows variety of interests and opinions to enjoy political representation. तो एक कमी है, बहुत messy रहता है और unstable रहती है गवर्नमेंट. पर दूसरी जगह पे एक ये है कि variety of interest इसमें accommodate होते हैं और variety of interest and opinions इसमें accommodate होते हैं. So which is better? Perhaps the best answer is very common. इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो बड़ा सिंपल है कि दिस इज नॉट अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन उतना अच्छा नहीं है. पार्टी सिस्टम इज नॉट समथिंग एनी कंट्री कैन चूज. ये इवॉल्व होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. एक जमाने में इंडिया में वन पार्टी सिस्टम, वन पार्टी डोमिनेंस, नॉट सिस्टम, वन पार्टी डोमिनेंस था. अगर आप बात करें from 1951 to 67 and then the period of Indira Gandhi, India had one party dominance. यहाँ पे कांग्रेस के अलावा कोई जीतता ही नहीं था. पर धीरे धीरे इवॉल्व हुआ इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम. आज बहुत इंपॉर्टेंस है मल्टी पार्टी सिस्टम की. रीजनल लेवल पे लोकल पार्टी जीत रही हैं, नेशनल लेवल पे बीजेपी जीत रही है. सो इट इवॉल्व्स ओवर अ लॉन्ग टाइम डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ सोसाइटी, its social and regional division, very important lines, its history of politics and the system of elections. These cannot be changed very quickly. Every country develops a party system which is conditioned by its special circumstances. For example, if India has evolved a multi-party system, क्योंकि यहाँ पे बहुत social and geographical diversity है, हमारी country बहुत बड़ी है और 2 या 3 पार्टियाँ easily इसको absorb नहीं कर सकती. So no system is ideal for all the countries and in all situations. हर कंट्री पे अलग अलग चीज सूटेबल होती है, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग चीज एक्सेप्टेबल है. सो वी कैन से किसी छोटी कंट्री के लिए मे बी बाई पार्टी सिस्टम इज गुड, बट इतनी ह्यूज कंट्री विद डाइवर्सिटी ऑफ कोर्स वी कैन नॉट हैव बाई पार्टी सिस्टम. सो इंडिया हैज मल्टी पार्टी सिस्टम. थोड़ा सा ग्राफ्स देखते हैं. काफ़ी इंप्रूवमेंट हुई है इंडिया में डिस्पाइट फ्लक्चुएशंस. पार्टी आइडेंटिफिकेशन हैज गॉन अप इन इंडिया. 2005 में काफ़ी लोग आइडेंटिफाई करते हैं और ऑलमोस्ट 50% लोग आइडेंटिफाई करते हैं अपने आप को किसी ना किसी पार्टी के साथ. पार्टी मेंबरशिप जो है वो हायर है. साउथ एशिया में लोग जो मेंबरशिप लेते हैं पॉलिटिकल पार्टी की, अपने आप को एसोसिएट करते हैं विद पॉलिटिकल पार्टीज. इंपॉर्टेंस इज गिवन टू पॉलिटिकल पार्टीज इन एशिया, साउथ एशिया मोर देन द ग्लोब. यू कैन सी इंडिया में 11.4 है, whereas in other continent it is as low as 1.3 in Spain. So that way India में काफ़ी लोग, more than 16%, 15% लोग अब कहते हैं कि हम किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर हैं. So importance is given to political parties in India. Let us start with the second topic, a very important topic of this chapter. It is national parties. आपने 2 वर्ड सुने होंगे, नेशनल पार्टी, स्टेट पार्टीज या रीजनल पार्टीज. तो पहले बात करते हैं नेशनल पार्टी की. अब इंडिया में सिर्फ 7 नेशनल पार्टीज रह गई हैं. डेमोक्रेसीज दैट फॉलोज अ फेडरल सिस्टम ऑल ओवर द वर्ल्ड टेंड टू हैव 2 काइंड्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज. पार्टीज दैट आर प्रेजेंट इन ओनली ऑफ द फेडरल यूनिट्स, दैट आर प्रेजेंट इन सेवरल और ऑल यूनिट्स. 2 गई. एक वन ऑफ द फेडरल यूनिट्स जिसकी एक स्टेट में ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और एक जिसमें काफ़ी जगह पे उसकी इम्पोर्टेंस है. इंडिया में भी ऐसा ही है. देयर आर सम कंट्री वाइड पार्टीज. तो कंट्री वाइड पार्टीज आर नोन एज नेशनल पार्टीज. दीज पार्टीज हैव देयर यूनिट्स इन वेरियस स्टेट्स. दे हैव देयर यूनिट्स इन वेरियस, यू कैन सी दे हैव देयर यूनिट्स इन वेरियस स्टेट्स. द कंट्री वाइड पार्टीज आर नोन एज नेशनल पार्टी. अगर हम आज बीजेपी की बात करें, आज हम कांग्रेस की बात करें, इनके काफ़ी स्टेट्स में इनकी प्रेजेंस है
इनफैक्ट बीजेपी की प्रेजेंस इस समय और कांग्रेस की प्रेजेंस पूरे इंडिया में है. So every party in the country has to register with the election commission. While the commission treats all parties equally, it offers some special facilities to large and established parties. These parties are given a unique symbol. Only the official candidates of that party can use their election symbol. जैसे कमल है, जैसे हाथ है, जैसे we have CPI का अपना सिंबल है, BSP का एलिफेंट है. तो ये सब सिंबल उनकी पार्टी के ऑफिशियल कैंडिडेट्स यूज कर सकते हैं. ये स्पेशल ट्रीटमेंट मिलती है. पार्टीज दैट गेट दिस प्रिविलेज एंड सम अदर स्पेशल फैसिलिटीज आर रिकॉग्नाइज्ड बाय इलेक्शन कमीशन फॉर दिस पर्पस. दैट इज व्हाई वी कॉल देम रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी, जिनके अपने इलेक्शन सिंबल्स होते हैं. इलेक्शन कमीशन हैज लेड डाउन डिटेल्ड क्राइटेरिया ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ वोट्स एंड सीट्स दैट अ पार्टी मस्ट गेट इन ऑर्डर टू रिकॉग्नाइज पार्टी. एक रिकॉग्नाइज पार्टी बनने के लिए कुछ क्राइटेरिया है. very important topic. A party that secures, ये आपको लर्न करना है बच्चों ठीक से, at least 6% of the total votes in the elections to the legislative assembly किसी एक स्टेट की, and wins at least 2 seats in the legislative elections, तो असेंबली में, तो उसे एक स्टेट पार्टी कहते हैं. तो आपको दो चीजें खास याद रखनी है. 6% vote and winning at least 2 seats. So if you don't win at least 2 seats, you are not a state party. You are not a recognized state party. और 6% आपको साथ में वोट्स भी आपके मिलने चाहिए. A party that secures at least 6% of total votes in लोकसभा, सेम अगर आपको लोकसभा दैट इज सेंट्रल के इलेक्शंस में, यूनियन इलेक्शंस में, और असेंबली इलेक्शंस इन 4 स्टेट्स या फिर 4 स्टेट्स में आपकी प्रेजेंस है जहां पे आपने 6% वोट्स लिए हैं, 4 स्टेट्स और 6% वोट्स इन लोकसभा, और यू एंड विन एटलीस्ट 4 सीट्स इन द लोकसभा. एटलीस्ट आपको 4 सीट्स लोकसभा में जीतनी है नेशनल लेवल पे, दैट इज नोन एज अ नेशनल पार्टी. तो 6% और 2 सीट स्टेट पार्टी, 6% 4 स्टेट्स एंड 4 सीट्स इज लोकसभा में जीतना इज अ नेशनल पार्टी. तो ये रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टी है. अकॉर्डिंग टू द दिस क्लासिफिकेशन, इंडिया में इस समय एज पर 2018 लेटेस्ट वी हैव 7 रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज. 2018 के हिसाब से वी हैव 7 नेशनल पार्टीज जो हम वन बाय वन आज डिस्कस करेंगे. विल बी डिस्कसिंग दीज पार्टीज. लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट नेशनल पार्टी. तो पहली पार्टी आती है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस. इट वॉज अ पार्ट ऑफ, एक्चुअली ये पार्टी कांग्रेस से ही अलग हुई है. इंडियन नेशनल कांग्रेस जो हमारी INC है उससे अलग हुई है. इट वॉज लॉन्च्ड ऑन 1 जनवरी 1998. आपको ये याद करना है. अंडर द लीडरशिप ऑफ ममता बनर्जी, हु इज राइट नाउ द चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल. रिकॉग्नाइज्ड एज अ नेशनल पार्टी इन 2016. इट्स पार्टी सिंबल इज फ्लावर एंड ग्रास. कमिटेड टू सेकुलरिज्म एंड फेडरलिज्म. ये दो आपको, ये टॉक अबाउट मोर अबाउट secularism and federalism, and has been in power in West Bengal since 2011. Left parties CPI के को हरा के आज around 2 terms से ममता बनर्जी is ruling. Although it has a presence in Arunachal Pradesh, Manipur and Tripura, also it has in these states. तो in the general elections of 2019 अगर हम बात करें, लेटेस्ट बात करें, it got 4.07 votes, but it won 22 seats and it became the 4th largest party in Lok Sabha. Most of the seats it won was in West Bengal, but quite popular in that area. So it has 22 seats, so it's a 4th largest party in Lok Sabha. The leader's name is Mamta Banerjee. Coming to the second national party, that is Bahujan Samaj Party. It was formed in 84. The leader who founded it, या ये पार्टी जो बनाई गई थी, फॉर्म की गई थी, वो मिस्टर कांशीराम. एंड उनकी थी कि हम लोग बहुजन समाज को रिप्रेजेंट करेंगे जिसमें दलित्स और आदिवासीज, ओबीसीज एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज आते हैं. इट ड्रॉज एन इंस्पिरेशन. तो ये बैकवर्ड कास्ट के लिए एक्चुअली वर्क करती है पार्टी, उनको रिप्रेजेंट करती है. ड्रॉज इंस्पिरेशन फ्रॉम द आइडियाज एंड टीचिंग्स ऑफ साहू महाराज, महात्मा फुले, पेरियार रामास्वामी नायकर एंड बाबा साहब अम्बेडकर.
इट ऑल्सो स्टैंड्स फॉर द कॉज ऑफ सिक्योरिंग द इंटरेस्ट एंड वेलफेयर ऑफ दलित। ज्यादा दलित की बात करते हैं, ऑपरेस पीपल की बात करते हैं। काफी अच्छा बेस है उत्तर प्रदेश में एंड सब्सटैंशियल प्रेजेंस इन नेबरिंग स्टेट्स लाइक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड। नॉर्थ इंडिया में इसकी काफी प्रेजेंस है, पहले काफी रहती थी प्रेजेंस, अब थोड़ी बीजेपी के रूल में कम हुई है। इट फॉर्म्ड, या ऑफ कोर्स मायावती हैड बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ Uttar Pradesh several times and by taking the support of different parties in different times. In the Lok Sabha elections, although they have just got to 3.63 seats, but they secured 10 seats in Lok Sabha, that makes them a national party. तो 10 सीटें आई थी 2019 में इनकी, और ये नॉर्थ इंडिया की स्टेट्स में इनकी प्रेजेंस है। ममता, मायावती इज द लीडर राइट नाउ, शी हैड बीन द चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी फॉर सेवरल टाइम्स। तो ये पार्टी है हमारी बहुजन समाज पार्टी। कमिंग टू द वेरी इंपॉर्टेंट पार्टी, वी हैव बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। जनसंघ था पहले, फाउंड हुई पार्टी इसी में से 1980 में। बीजेपी फाउंड बाय श्यामा प्रसाद मुखर्जी इन 51, दैट वाज जनसंघ। जनसंघ ही आगे जाके बीजेपी में बना। wants to build a strong and modern India by drawing इंस्पिरेशन फ्रॉम इंडियाज एंशियंट कल्चर। बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं इंडियन वैल्यूज एंड दीनदयाल उपाध्याय's आइडिया ऑफ इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म और अंत्योदय। कल्चरल नेशनलिज्म की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इन कंसेप्शन ऑफ इंडियन नेशनहुड एंड पॉलिटिक्स। वांट्स फुल टेरिटोरियल पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू कश्मीर, जो आपने देखा भी है, 370 आर्टिकल को हटा दिया गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को सपोर्ट करती है पार्टी फॉर ऑल पीपल लिविंग इन इंडिया, जिस भी रिलीजन के हैं। इट ऑल्सो सेज दैट इट शुड बी बैन ऑन रिलीजियस कन्वर्जन्स। इट सपोर्ट बेस इंक्रीज इन द अर्ली 1990s, earlier limited to north and west and to urban areas. The party has tremendously expanded its support to south, east and northeast and also rural areas. 1998 में as the leader of the NDA, including several regional parties, वहाँ फॉर्म हुई थी NDA 1, NDA 2 अंडर अटल बिहारी वाजपेयी जी। एंड नाउ इन 2019 अंडर मिस्टर मोदी, they have got the absolute majority with 303 seats in Lok Sabha. Currently it leads the ruling NDA government at the center. Very very important national party. BJP system भी इवॉल्व हो रहा है इस समय। Coming to the Communist Party, one of the again old parties of India, formed in 1925, believes in Marxism, nationalism, Leninism, लेनिन के और मार्क्स के आइडियाज पे चलते हैं। सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं। सेशनिज्म, कम्युनलिज्म के अगेंस्ट बात करते हैं। एक्सेप्ट्स पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एज अ मीन ऑफ प्रमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ द वर्किंग क्लास, फार्मर्स एंड द पुअर। इट बिकेम वीक आफ्टर द स्प्लिट, पार्टी स्प्लिट हो गई थी। चाइना की वॉर इंडिया के साथ हुई थी, उसके बाद पार्टी स्प्लिट हुई और CPIM अलग हो गया। CPIM चाइना सपोर्टिंग एंड CPI रशिया, सोवियत यूनियन की सपोर्टिंग पार्टी थी, जो उनकी आइडियोलॉजी भी चलती थी। सिग्निफिकेंस प्रेजेंस दिखाती है इसकी, किस किस स्टेट में प्रेजेंस है, इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू स्टूडेंट्स। केरला में काफ़ी इसकी सिग्निफिकेंट प्रेजेंस है। वेस्ट बंगाल, पंजाब, आंध्रा एंड तमिलनाडु, 5 मेजर स्टेट्स। Its support base had gradually declined over the years. It just secured less than 1% vote and only 2 seats. So warning भी मिली है कि अगर अगली बार इनको नहीं मिलती है one more elections, then they will be losing the status of a national party. So just 2 seats in Lok Sabha elections and 1% vote. जो पार्टी स्प्लिट हुई थी, CPIM, founded in 1964, again believes in same Marxism and Leninism, supports socialism, secularism and democracy and opposes imperialism and communism. दोनों की आइडियोलॉजी सेम रही है। Access democratic elections as a useful and helpful means for securing the objective of social economic justice. सेम सपोर्ट है वेस्ट बंगाल में, केरला में, त्रिपुरा में सपोर्ट है, स्पेशली अमंग द पुअर। फैक्ट्री वर्कर्स की बात करते हैं, फार्मर्स, एग्रीकल्चर लेबर्स, एज दे से दे टॉक अबाउट पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। क्रिटिकल ऑफ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ बात करते हैं, फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल गुड्स के खिलाफ बात करते हैं,
It was in power for 34 years in Bengal without a break. West Bengal में power रही थी until Mamata Banerjee came to power. Again in 2019 जो बात की जाए, बहुत कम वोट मिले. It just won 1.75% of votes and only 3 seats. Again the left party losing their actually votes and also losing the support of people. The oldest party, very popular party, single, एक जमाने में सिंगल पार्टी रूल की तरह काम किया. Popularly known as the Congress Party, one of the oldest parties, founded in 1885. स्प्लिट होके काफी पार्टी इसी में से निकली हैं. अभी आपके सामने एनसीपी, AITC, ये सब पार्टीज, सोशलिस्ट पार्टी, ये सब इसमें से ही निकली हैं, कांग्रेस से ही निकली. Played a dominant role in Indian politics and national state level for several decades. सबसे ज्यादा रूल इसी पार्टी ने किया है देश पे. Under the leadership of Jawaharlal Nehru, the party sought to build a modern secular democratic republic in India. Ruling party at the center till 77, and then from 80 to 89. After 89 the support declined, but its presence is still throughout the country. It cuts across social divisions. A centrist party, ना rightist है ना leftist है, ना totally rightist है ना totally, दोनों की बात करती है, left and right. In the ideology and orientation, the party espouses secularism and welfare of weaker sections and minorities. It's an ideological coalition. It was an ideological coalition. INC supports new economic reforms, but with the human phase. Leaders of UPA alliance government, it formed अपना government form की थी from 2004 to 2014. In 2019 Lok Sabha, it has just won 52 seats. इतनी बड़ी पार्टी एक जमाने में 300 से ऊपर सीटें लेने वाली, more than 350 seats in the times of Indira Gandhi and Nehru, today is restricted to only 52 seats. Certainly a decline in the party's popularity. National Congress Party, the last national party to be discussed today, formed in 1999, as the name says. It has also split from Congress Party. It has come out from Congress Party. It also supports democracy, Gandhian secularism, equity, social justice and federalism. इनकी लड़ाई कांग्रेस में ये हुई थी कि they wanted top post, high offices in government be confined to natural born citizens of the country. They were against Sonia Gandhi being the Prime Minister of India. So Sharad Pawar, Sangma and these leaders, they actually split from Congress कि सोनिया गांधी को हेड क्यों बनाया जाता है. और बाय सोनिया गांधी claims to be the prime minister, was a claim to the prime minister's seat. A major party in Maharashtra and has a significant presence in Meghalaya, Manipur and Assam. अभी महाराष्ट्र में it has an alliance with शिवसेना and Congress और वहाँ पे पार्टी रूल करती है. Since 2004 a member of UPA. स्प्लिट होने के बाद भी कांग्रेस के साथ ही कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म की जाती हैं बाय नेशनल कांग्रेस पार्टी एंड द लीडर्स आर द मेन लीडर इज शरद पवार जो अलग हुए थे कांग्रेस से in 1999. So here we finish today's class with the ending with national parties, 7 national parties. Very, very important topic as per boards. So please complete this. And for other online tests and other study materials, students, you can download our EcoVisioner app. And also if you want, you can register for our EcoVisioner International Olympiad, which is going to happen in the months of December and January. So English is also there as a subject. For class 10th, we have English and social science. For other details, you can visit our website or you can download our EcoVisioner app. Go to the store and get all the important information. Thank you. Take care. God bless you.